we discussed about the derivation of a general equation for horizontal flow in a gas pipeline. So if you have any doubt regarding this, so please let me know. So today we'll solve some numericals also, and we'll also see what are the important actually formulas which we have derived from this main equation. Okay, so this is the basic equation for the horizontal flow through a pipe, and you should also remember that here the potential head was 0, but we also considered kinetic energy as negligible or minimum. Okay, so it was considered to be negligible. Then we derived this equation. One more thing, that the compressibility factor of natural gas was not varying with respect to pressure. So this is the some simple equation or the general equation for the horizontal flow through a pipe. Now we'll see how this equation was further used and developed for the other applications. Okay. So first, this equation was developed by Weymouth by considering this F is equal to F. Suppose friction factor is a function of pipeline diameter. So this equation is again now changed to this form. This is a very famous equation which is called Weymouth equation. Okay, so this equation doesn't have any F value, and there is, I mean, you can clearly see the diameter got this. Diameter has a power of 16 by 3. This is the first identification of this equation. So if the power of the diameter is 16 by 3, it's actually the Weymouth equation. Why I am saying this? Because this equation, based on the units of these variables, has got different forms, and it has been actually given by different in different books. Okay, so but you need not to confused, because I told you this is not the constant value. This is just the number derived from the it's a conversion factor based on the units of these variables. So in other books you may find another value for this. Okay, so the main identification of the equation is this 16 by 3 power of diameter. Okay, that's the Weymouth equation. So this is the first equation for horizontal flow. Okay, this is the first equation for the horizontal flow through a pipe, and it is given by Weymouth. Okay. Then this the same equation, or the earlier equation, was again derived by Penhandel. So there are again two another equations actually derived by Penhandel, and the first in first equation he considered F is equal to this, which was the function of the Reynolds number, and Reynolds number we already know. कुछ याद है 20 वाला जो इक्वेशन था, Q गामा अपॉन म्यू, तो वो आप इसमें रख सकते हो, और रेनॉल्ड्स नंबर से भी ये इक्वेशन ड्राइव हुआ। और देखो ये रेनॉल्ड्स नंबर मैंने शिफ्ट कर दिया, ठीक है, बाय दिस फार्मूला. So this may now this is the equation. This was the equation earlier, and after putting F value of this equation got this form. So finally you can drive equation in this form. So here power of D is again 2.61. This is for Panhandle A equation, which was derived for the high flow rates. Here the power of D is actually 2.61, because for everyone including you it's very difficult to remember the equation. Okay, because there are so many powers, and the equation has got entirely different form. Okay, so it becomes very difficult to remember this, but based on the power of diameter,
you can identify for which equation we are talking about. Similarly, then he considered f is equal to the function of this, where this was for the high values of Reynolds number. And again, the diameter got this form 2.53. So there are two equations, panhandle A and panhandle B. ठीक है, तो ये सब दोनों इक्वेशन भी हॉरिजॉन्टल फ्लो के लिए यूज होती हैं when you are encountering very high flow rates or very high Reynolds number. So for very high Reynolds number, you need to use the equation given by Panhandle, and the equation is B, equation B. For high flow rates, you can use Panhandle A equation when F is equal to this. तो ये तीन इक्वेशंस जहां भी कोई पूछे आपसे, ऐसे भी पूछ सकते हैं, what are the equations which are used for the horizontal flow. पर सबसे पहले है वेमाउथ, पैनहैंडल ए. ये दो नाम बहुत फेमस है, इनको प्लीज याद रखना. वेमाउथ इक्वेशन एंड पैनहैंडल इक्वेशंस आर यूज्ड फॉर द हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ द गैस इन द पाइप. ठीक है, एंड फॉर दीज टू इक्वेशंस Z is not varying. You should also remember this. Okay, so when we have the Z which is not varying with pressure, so these are the important equations are Weymouth and Panhandle equations. ठीक है, ये दोनों इक्वेशन बहुत फेमस इक्वेशन है. ठीक है, so this was the main equation which we derived, and from the same equation I further derived two more equations based on the value of F, friction factor. ठीक है, so I have derived another two equations. First is Weymouth equation and second is the Panhandle equation and Panhandle B equation. ठीक है, another from the same equation, if you are determining one by this, it is called actually transmission factor. There was another variable also, another important fundamental, that what is the transmission factor. So you can determine transmission factor from the Weymouth equation, sorry, from the main equation, where transmission factor is defined by this. ये भी याद रखना. ठीक है, 1/√f. तो इसको यदि निकालोगे तो दिस इज द ट्रांसमिशन फैक्टर, और ट्रांसमिशन फैक्टर इस मेन इक्वेशन से निकाल सकते हैं हम लोग. नेक्स्ट है, जैसे यस, नाउ आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस अनदर इंपॉर्टेंट फंडामेंटल, द रियल इक्वेशन, द रियल और द प्रैक्टिकल इक्वेशन जो फील्ड में एप्लीकेबल है और रिजर्वायर में मोस्टली एप्लीकेबल है फॉर द हॉरिजॉन्टल फ्लो. ठीक है, तो थ्रू द चैनल्स, पोर, थ्रोट्स ऑफ द सर्कुलर एरिया, या फिर आप बोल सकते हैं कोई कंस्ट्रक्शन है, कोई चैनल है, तो वहां पर जो रियल सिचुएशन में एप्लीकेबल है वो ये इक्वेशन है. क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, which is given by Clindenset, is actually the function of pressure. Z is varying with pressure. तो यही वो रियल केस है जो लास्ट टर्म पे डिस्कस हुआ था, एंड somebody also told कि Z cannot be kept constant. तो अर्लियर हमने Z कांस्टेंट किया था, याद आ रहा होगा आपको यहाँ पर. सो दिस वाज द इक्वेशन, और यहीं से ही हम एक नया फंडामेंटल फिर से देखते हैं. इक्वेशन एक्चुअली which we derived earlier, and here Z was the with pressure. So I said that if we don't take this as a varying function of pressure, so this will go on the right hand side. So then the equation was very simple to understand, and we derived this also. And from the same equation, we again derived two equations, Weymouth and Panhandle. So now, okay, let us make this case real for the applications in field. So this will not, this will vary actually with the whole function will vary with the pressure. So you cannot take Z on the right hand side, and it will be on the left hand side. So इक्वेशन कैसे दिखेगा फिर आपको, जो रियल केस इक्वेशन देखेंगे आप, तो वो ऐसे होना चाहिए. दिस विल बी द रियल इक्वेशन
yes, and it is given by the condensate. So the सबसे important equation जो रियल फील्ड में एप्लीकेबल होती है और जो रियल इक्वेशन है फॉर हॉरिजॉन्टल फ्लो इन द इन द पाइप्स इज गिवन बाय कंडेंसेट. तो इसका नाम भी यही है, कंडेंसेट इक्वेशन. ठीक है, और आप देखो जो लेफ्ट हैंड साइड में दिखाया था दैट विल बी द फंक्शन लाइक दिस, and it will vary with the pressure, so we will keep P by Z together with pressure, but the same can be written as in this form also. So P can be replaced by critical properties and reduced property. Similarly जो D के साथ है डिफरेंशिएटर में वो भी ठीक है. PPC कांस्टेंट होता है तो हमने इसको बाहर ले लिया, तो PPC स्क्वायर विल कम आउट एंड इट विल बी लाइक दिस. ठीक है, then Clignanset said that this value of the function, sorry जहां पे आपने इंटीग्रेशन दिखा रखा है, this value can be determined from the table. So if we have two points 1 and 2, so the same equation can be written as this. ठीक है, क्योंकि ये जो है ये क्या है एक्चुअली, PR1 to PR2 limits, PR1 to PR2 and PR1 to PR2 limits जो है that can be written as like this, 0 to PR1 minus 0 to PR2, then it will be actually equal to like जैसे 1 to 2 है या 1 to 4 है, it will be 0 to 4 minus 0 to 1. ठीक है, वही लिखा है बस. तो why I have written Clignanset, why Clignanset has written this equation in this form, because this value you can determine directly from the table. ठीक है, because every value in the table starts from 0. तो Clignanset से ये सॉल्व हो जाता है इजीली, और हर वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट होती है. इसीलिए जो भी आपके पास लिमिट होंगे 2 to 5, फर्स्ट यू हैव टू रिड्यूस देम इन दिस फॉर्म. ठीक है, और ये राइट हैंड साइड में था ही पहले से, तो वो भी यहाँ पे है. देन फर्दर आपको क्योंकि निकालना है QSC, तो QSC इस तरफ लेके आ जाइए और इक्वेशन विल लुक लाइक दिस. और जो ये वाला वैल्यू है ना जो ब्रैकेट्स में है, दिस विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द टेबल. तो ये आपकी रियल इक्वेशन है व्हेन यू आर कंसीडरिंग Z एज ए फंक्शन ऑफ प्रेशर. एज वी डिस्कस्ड अर्लियर that Z suppose is not the constant and it's not an average value, it's varying with the pressure, so the same equation can be derived like this. तो इसको क्या है फंडामेंटल Clignanset का, that this equation is actually reduced to this form which is a reduced pressure form, और उसको हम टेबल से सॉल्व करेंगे. When I will solve a numerical, you will understand how do we determine this value, and then we will determine the flow rate, and that will be the real flow, I mean flow rate or most accurate flow rate if we compare this equation with Weymouth. Weymouth और उसमें यही डिफरेंस है that the Z जो है प्रेशर का फंक्शन है फॉर Clignanset. तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, हॉरिजॉन्टल फ्लो के लिए देयर आर 3 इंपॉर्टेंट नेम्स, Weymouth, Panhandle and Clignanset. So Weymouth और Panhandle does not consider Z as a varying function of pressure, but Clignanset considers. तो इसलिए दोनों में डिफरेंस है और 3 इंपॉर्टेंट नेम है. जब जब ये तीनों नाम आप सुनोगे कहीं पे भी, इवन क्वेश्चन में भी या कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी, तो यू शुड इमीडिएटली अंडरस्टैंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट और व्हाट टाइप ऑफ फ्लो we are taking into consideration. So Clignanset, Weymouth and Panhandle are used for the horizontal flow. Please remember all these things. Now another fundamental है, let me show you this also. Any doubt please let me know regarding this if you have not understood. कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे. डेरिवेशन बहुत सिंपल डेरिवेशन है. I have just used the same equation which we derived earlier, और उससे मैंने क्या किया है, दस इक्वेशन को इस फॉर्म में निकाला है, एंड दिस वैल्यू आई टोल्ड यू वी विल डिटरमाइन फ्रॉम द Clignanset टेबल. तो मैं आपको दिखा दूंगा आगे, एंड ओके लेट मी शो यू दिस टेबल आल्सो नाउ. दिस इज द Clignanset टेबल. तो ये जो टेबल है ये दो फॉर्म में ड्राइव है, एक तो PR एंड TR. ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना, the value given in this table is actually multiplied
by a factor of 10 raised to the power minus 2. So for example, if you are reading this, it is actually 1.98. तो जो वैल्यूज हैं वो ऑलरेडी 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई, और देखो वैल्यू किसका है, ये इसका। तो ये क्लिंडेंसी टेबल है, इसको हम यूज करेंगे और डायरेक्टली आप 0 टू पी आर बाई जेड डेल पी आर का वैल्यू यहां से निकाल सकते हो। सिमिलरली अनदर टेबल है, ये सेम टेबल है, ठीक है, ये भी पी आर टी आर में है। मैंने डिफरेंट पिक्स दिए हैं टेबल के, तो ये सब टेबल्स हैं विच वी विल यूज टू डिटरमाइन QSC यूजिंग क्लिंडेंसेट इक्वेशन, ठीक है। और मैं जब न्यूमेरिकल करेंगे ना सॉल्व, सो वी विल यूज दीज टेबल्स एंड आई विल टेल यू कि एग्जैक्टली हम कैसे इसको यूज करते हैं। then we will be able to calculate also the QSC by condensate, and we will also see जो value of flow rate by Weymouth equation and value of the flow rate by condensate equation दोनों से निकालेंगे और देखते हैं कि if we does not consider, if we make z as constant or variable function, what happens to value of q, तो वो न्यूमेरिकल से क्लियरली आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये न्यूमेरिकल अभी हम करेंगे, जस्ट मैंने आज इंक्लूड किए हैं फॉर द डिस्कशन ऑफ टुडे। बट बिफोर गोइंग अहेड, वन मोर कंसेप्ट इज देयर टू डिस्कस। नाउ सपोज यू हैव ए हॉरिजॉन्टल पाइप ऑलरेडी, और इसका जो मेन इक्वेशन है वी ऑलरेडी हैव ड्राइव्ड। व्हाट वाज द मेन गवर्निंग इक्वेशन फॉर द हॉरिजॉन्टल पाइप? दिस वाज द मेन गवर्निंग इक्वेशन। So based on this same equation, I am asking if we have a horizontal pipe of this length, L length, from A to B, what will be the average pressure in the pipeline? ठीक है, so if we have P1 at A and P2 at point B, so average pressure, can anyone tell? It will be P1 plus P2 by 2, but that is not true. And we will see how do we determine for this case when we have a horizontal pipe and we are asking you what will be the average value of pressure in the pipeline which is having length L. So I have considered that, suppose we are considering a point C somewhere in between the pipe, and the distance of this point from the end A is Lx, so the remaining will be L1 minus x, ठीक है। और सेम A to C के लिए if the length is Lx, तो horizontal equation can be written as like this। याद आए कुछ? सेम इक्वेशन को मैंने फिर से लिख दिया फॉर AC section। So earlier it was L, now it will be Lx for AC section, and the conversion factor, this was not the conversion factor here. See, it is 0.077554. So I told you this value is not constant value. It will be actually varying based on the value of these units के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस कन्वर्जन को आप इतना ज्यादा मतलब यूज मत करो, आप अकॉर्डिंगली यूज करो। जब भी आप जो यूनिट यूज करोगे वही कन्वर्जन यहाँ पे आपके पास आना चाहिए। तो ये तो जस्ट इन यूनिट्स के लिए था जिसमें 5.63 आप यूज कर सकते थे। तो आप चाहो तो इस इक्वेशन में 5.63 भी रख सकते हो, बट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू, कन्वे that this value is not the constant value, this is actually the conversion factor, these variables. So similarly आप चाहो तो 5.63 से भी सॉल्व कर दो। So this will be the flow rate, because सीरीज कॉम्बिनेशन है दोनों AC and CB। तो AC के लिए जो फ्लो रेट होगा that will be the flow rate for AC section। Similarly CB section के लिए भी यही होगा, but length will be L1 minus x। Here length was Lx, because दोनों सीरीज में है तो Q1 Q2 इक्वल होंगे, तो उनको इक्वल कर दो तो इक्वेशन विल लुक लाइक दिस। बहुत इजी है, ठीक है। अब इसमें से आपको क्या निकालना है? एक्चुअली दिस वैल्यू वी जस्ट वांटेड टू डिटरमाइन, ये है वो px वैल्यू एट C पॉइंट।
तो सी पे जो वैल्यू है वो है पी एक्स, बी पे पी टी, पी टू, और ए पे है पी वन। तो आई वांट टू नो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पी एक्स और व्हेन आई एम एक्चुअली वेरिंग द लेंथ। तो आप जो भी वैल्यू एक्स का यूज करोगे, ठीक है, अकॉर्डिंगली आपके पास प्रेशर निकालने के लिए फॉर्मूला रहेगा। जैसे फॉर्मूला क्या होगा, दिस विल बी द फॉर्मूला। तो नाउ आई एम टेलिंग यू, इफ एक्स वैल्यू को आप जीरो कर दीजिए, इफ एक्स इज जीरो, तो आप कहां पे हैं, एक्चुअली ए पे, तो पी ए विल बी इक्वल टू पी वन। ठीक है, इफ एक्स इज इक्वल टू सपोज वन, टोटल लेंथ, एक्स का वैल्यू वन हो जाए, दिस विल बिकम द लेंथ एल। तो उस केस में पी एवरेज कितना हो जाएगा, पी आप कहां पे चले जाएंगे, पीबी, तो पीबी पे ही आएगा पी टू। तो दिस इक्वेशन इज एक्चुअली ओके। तो वही हमने किया है। फिर आप इसमें से देख लीजिए, एट जीरो पे मैक्सिमम प्रेशर, पॉइंट बी पे मिनिमम प्रेशर, ठीक है, एक्स की वैल्यू। तो समवेयर आपको इन बिटवीन आपको एक एवरेज वैल्यू निकालना है, तो आप क्या करो, पी एक्स का इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, तो पी एवरेज वैल्यू विल बी व्हाट, पी एक्स, जो आपने वैल्यू निकाला है, पी एक्स डी एक्स 0 to 1, so that will be the average। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद दिस विल लुक लाइक दिस एंड फाइनली दिस विल बी दिस। और ये एक न्यूमेरिकल सॉरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी था, आई डोंट नो विच ईयर इट वाज देयर इन द गेट। सो 67% होता है एवरेज वैल्यू विद इन द पाइप ऑफ द, जैसे आप क्या कैसे पता करोगे, आप 2/3 आएगा, ये देखना 2/3, इफ डाउन स्ट्रीम प्रेशर इज जीरो, तो इट विल बी दी 2/3 ऑफ P1। 2/3 कितना आएगा, 66.7 क्या 66 पॉइंट समथिंग। तो एवरेज वैल्यू जो हम सोचते हैं ना 50% होगी, वो 50% नहीं है एक्चुअली, इट्स इट्स स्टैंडर्ड वैल्यू। तो ये आएगा 2/3 ऑफ P1। तो ये कहाँ से आया, यहीं से निकाला गया था। बट ऐसे ऐसे फॉर्मूला वाइज देखना है तो 2/3 ऑफ P1 क्यूब माइनस P2 क्यूब अपॉन P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर। तो मैंने बोला डाउन स्ट्रीम प्रेशर यदि डेटम प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक है, तो ये सपोज बिकम जीरो, तो 2/3 ऑफ P1 आएगा। देखो 2/3 P1 क्यूब माइनस P1 स्क्वायर, तो 2/3 ऑफ P1। तो ये जो मैक्सिमम प्रेशर है आपके पाइपलाइन में, उसका कितना हुआ, 67% के आसपास आएगा। ये यही ऑब्जेक्टिव भी था, क्वेश्चन था गेट में, एवरेज प्रेशर इन दी हॉरिजॉन्टल फॉर द नेचुरल गैस फ्लो इन दी पाइपलाइन इज 67% ऑफ इनिशियल प्रेशर। तो वही मैंने ड्राइव करके भी दिखाया आपको यहाँ से। दोनों इक्वेशन, दोनों लेंथ में आप फ्लो रेट इक्वल कर दो और एक जनरल इक्वेशन निकाल लो पी एक्स की, और उसका इंटीग्रेशन कर दो फॉर द एंटायर लेंथ, दैट विल बी द एवरेज वैल्यू। और फिर वही मैंने ड्राइव करते करते वो आ रहा है 2/3 ऑफ P1 cube minus P2 cube upon P1 square minus P2 square। Please remember this formula that will be used also during numericals। तो ये तीनों चारों डेरिवेशंस जो आज हुए हैं, वेमाउथ, एवरेज प्रेशर, पैनहैंडल एंड क्लिनडेंसेट, ये मैंने चारों डेरिवेशन आज, जो कोई डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है, so I can again repeat, please let me know, because after that we will shift to the न्यूमेरिकल्स। तो वो हम एक दो न्यूमेरिकल करेंगे आज बेस्ड ऑन दी हॉरिजॉन्टल फ्लो इन दी पाइपलाइन, और देखते हैं हम दोनों इक्वेशन से सॉल्व करके देखेंगे क्या आता है निकल के। ठीक है, देन उसके बाद आएगा वर्टिकल फ्लो। तो वर्टिकल, जैसे हॉरिजॉन्टल फ्लो में तीन नाम आए ना, पैनहैंडल एंड दिस क्लिंडेसिट, ऐसे ही वर्टिकल फ्लो में भी कुछ नाम आएंगे, तो वो हम बाद में देखेंगे। फर्स्ट कंसीडर द केस ऑफ द हॉरिजॉन्टल फ्लो, and if you have any doubt regarding these equations, derivations और एवरेज प्रेशर भी हम आज हमने डिटरमाइन किया विद इन द पाइपलाइन। एनीथिंग एल्स फ्रॉम योर साइड?
कोई भी चीज डाउट नहीं है? There were four discussions. I mean, the discussion. There was discussion on four fundamentals today: average pressure in the pipeline, Weymouth equation, panhandle A, panhandle B, and Clinton set. ये सारी इक्वेशंस पे डिस्कशन है हुआ है. कोई भी क्वेश्चन है आपका? नो क्वेश्चन. ठीक है सर, लेट अस सॉल्व अ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दीज फंडामेंटल्स. तो न्यूमेरिकल ये है, थोड़ा लेंथी न्यूमेरिकल है, बट इन दिस न्यूमेरिकल you will find that we will solve the we will determine the throughput. Throughput means Q for a 40-mile pipeline using Weymouth equation and Clinton-Set equation. So in this numerical, you can see that it has not been mentioned that this line is actually horizontal. But from the words Weymouth and Clinton-Set, I can understand this is a horizontal pipeline, and what is asked, calculate the maximum throughput, which is actually Q. ठीक है? So Q is asked for a 40-mile pipeline using Weymouth equation से निकालना है आपको, और एक Clinton-Set equation, दोनों से निकाल के देखो कि Q की वैल्यू क्या आती है. दोनों केसेस में Q क्या कैसे डिफर करता है, और फिर देखते हैं दोनों के केसेस में Q सेम आता है या डिफर होता है या चेंज होता है. तो पहले हम वेमाउथ इक्वेशन से सॉल्व करेंगे. वेमाउथ इक्वेशन अपने पास ऑलरेडी है. So if you want to use suppose this equation, you can use this equation also, but please remember कि जो इनके यूनिट्स हैं वो रेलेवेंट होने चाहिए. जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके यूनिट्स, डायमीटर सब वेरिएबल होना, सॉरी रेलेवेंट होना चाहिए. So you can use the same conversion factor. Otherwise, you can also use the another equation of a different conversion factor based on the your fundament. I mean, based on the different unit system. तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा. आप चाहो तो ये इक्वेशन यूज करो चाहे दूसरी. But first determine the maximum throughput for a 40-mile pipeline of this type using Weymouth equation. तो हम कैसे करेंगे इसको? और वेमाउथ इक्वेशन यूज करना है आपको. तो इसमें मैक्सिमम प्रेशर एट विच 10 इंच नॉमिनल साइज पाइप दिया है. ओडी आपको 10.75 इंच दिया है, आईडी 10.02 इंच दिया है. ठीक है. कैलकुलेट दी मैक्सिमम थ्रूपुट फॉर लेंथ है 40-माइल पाइपलाइन, और इक्वेशन है पहले वेमाउथ एंड देन क्लिंडन. एज्यूम एफ साइलेंट बाई डी वैल्यू दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, यस कैपिटल ई वाई एस, टी एवरेज, विस्कोसिटी, ग्रेविटी दिया है. एज्यूम 0 psi एज द मिनिमम प्रेशर. तो जो सेकंड प्रेशर है एज्यूम 0 psi. तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, कुछ आइडिया है कैसे अप्रोच करना चाहिए? एनीबडी एल्स हु नोज कैसे करना है?
आपके पास इक्वेशन में TSC भी आपको पता है, PSC भी आपको पता है, P2 डायमीटर भी पता है, ओके, गामा मिला हुआ है, जेड एवरेज नहीं दिया है, और टी एवरेज दिया हुआ है क्या, लेट अस सी, यस टी एवरेज इज आल्सो गिवन, और लेंथ L चाहिए, लेंथ भी दिया है 40 माइल। तो इसमें आपको क्या क्या नहीं मिला हुआ है वो देख लो। आपको P1 दिया हुआ है, लेट अस सी, प्रेशर कुछ नहीं दिया हुआ है, प्रेशर की कोई वैल्यू नहीं है, हाँ, बट कुछ डेटा से क्लियर होता है कि दीज थिंग्स कैन बी यूज्ड बाय टू डिटरमाइन P मैक्सिमम। कुछ याद आया? टू वो था ना, P इज इक्वल टू, जो हमारे पास हुक स्ट्रेस का इक्वेशन है, उसी को यूज कर सकते हैं हम लोग। 2T माइनस सी इंटू एस इंटू ई, ये था ना एक इक्वेशन, डी नॉट माइनस 2T माइनस सी, इंटू वाई। तो इससे आप P मैक्सिमम निकाल सकते हो इजिली, क्योंकि ये डेटा दिया हुआ है, और एक्सियम में जीरो मिनिमम प्रेशर, तो जो मिनिमम प्रेशर है वो मेरे पास एक्चुअली जीरो है। P मैक्सिमम आ रहा है 4664। चंद्राज, दैट इज रॉन्ग। ये क्वेश्चन बुक में भी दिया हुआ है, यदि आपने बुक से कर रहे हो तो दैट इज रॉन्ग एक्चुअली। आपको एकदम इमिडिएटली 4664 कैसे निकल गया, आई डोंट नो, इतनी देर में कैसे किया आपने? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थिकनेस हियर चंद्राज? व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ थिकनेस यू हैव यूज्ड? अब दैट इज रॉन्ग, गलत है। थिकनेस देखो आप, मैक्सिमम डायमीटर 0.75 दिया है, 10.75 दिया है, आईडी 10.02 दी हुई है, तो इन दोनों को डिफरेंस करोगे तो एक्चुअली 2T आएगा। इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो ये 2T आएगी, समझे? तो यही गलत है बुक में, यहीं से ही सब कुछ गलत है, तो इसलिए थोड़ा फंडामेंटल यूज करो पहले तो। T इज इक्वल टू हो जाएगा 0.73/2। तो थिकनेस मिल गया मुझे यहाँ से। लिसन एवरीवन, जो मेरे पास आईडी दिया हुआ है और ओडी दिया हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो 2T आएगा, नॉट T, ठीक है? क्योंकि आप देखो पाइपलाइन ऐसे है और होलो है, तो जब आप डिफरेंस निकालोगे तो ओडी में से आईडी घटाओ, तो यही बुक में गलत किया हुआ है बस। इन दोनों को घटाने के बाद आपके पास 2T आएगा, तो P मैक्सिमम निकाल के देखो थिकनेस T से। हाँ, तो P मैक्सिमम आ रहा है चंद्रास 2100 PSI। हाँ, ये ठीक है वैल्यू। तो जो P मैक्सिमम आया है, इट इज कमिंग अराउंड 2100 PSI। तो एवरीबडी प्लीज आल्सो सॉल्व। फर्स्ट तो पहले जो डेटा दिया है ना, डेटा से आप ट्राई करो कि जो इन्फॉर्मेशन निकाल सको वो निकाल लो। तो इससे हम एक्चुअली सीधे सीधे पता चलता है, डेटा से मैं P मैक्सिमम निकाल सकता हूँ इफ आई हैव वैल्यू ऑफ थिकनेस। तो थिकनेस मैंने निकाला है इससे, ओडी एंड आईडी से, ठीक है? तो ओडी आईडी से 2T आ जाएगा, 2T से T निकाल सकते हो, एंड देन P मैक्सिमम आएगा 2100, और P मिनिमम दिया हुआ है 0। तो मेरे पास दो लिमिट आ गए प्रेशर के विद इन दी पाइपलाइन, तो वो P1 P2 ही तो है, ठीक है? क्लियर है? वाई, अच्छा, यहां से तो आपके पास P1 P2 आ गया, बट इन दिस फॉर्मूला वी नीड अदर थिंग्स आल्सो। तो मेरे पास P1 भी है, P2 भी है, बट स्टिल आई डोंट हैव जेड वैल्यू। और जेड एवरेज निकालने के लिए आपको P एवरेज चाहिए। क्यों? क्योंकि P एवरेज को मैं यदि
पीपीसी से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास पी एवरेज आर आ जाएगा। कुछ याद आया? पी एवरेज आर, और टी एवरेज भी दिया हुआ है ऑलरेडी, तो टी एवरेज आर भी निकाल लो आप। दोनों को यूज करो स्टैंडिंग कार्ड चार्ट में और जाके जेड निकाल लो, दैट विल बी जेड एवरेज। क्लियर? तो जेड एवरेज निकालने के लिए आपको पी एवरेज चाहिए। डेटा में एक्चुअली टी एवरेज मिला हुआ है, और पी एवरेज के लिए मैंने अभी आपको सॉल्व करवाया है। व्हाट विल बी पी एवरेज? पी एवरेज विल बी 2/3 ऑफ P1 आएगा। ठीक है? बट एक्चुअली चंद्रहास और एवरीवन, पी मैक्सिमम दिया हुआ है जो डिटरमाइन हुआ है 2100। बट आई वुड सजेस्ट कि हम हमेशा इतने प्रेशर पे काम नहीं करेंगे। चाहो तो आप ये वैल्यू यूज भी कर सकते हो, डजंट मैटर। आप थोड़ा सेफ वैल्यू यूज करो विच विल बी अराउंड 2000। तो 2000 यूज कर लो, 1900 भी यूज कर सकते हो, दैट विल बी मोर सेफ। तो ना तो थोड़ा ज्यादा दूर भी मत जाओ, बट 2100 इज द मैक्सिमम वैल्यू। फॉर द सेफर साइड यू कैन कीप इट 2000 वैल्यू, और 1900 भी ले सकते हो, 950 भी ले सकते हो, डिपेंड्स आप क्या वैल्यू लेना चाहते हो। और आप यदि बिल्कुल ही मैक्सिमम कैपेसिटी पे पाइपलाइन को ऑपरेट करना चाहते हो तो यू कैन एक्चुअली यूज दिस वैल्यू आल्सो 2100। नथिंग रॉन्ग इफ यू वांट टू यूज दिस। तो पी एवरेज कितना आएगा? 2/3 ऑफ P1, बिकॉज P2 0 है। समझ में आ रहा है? P2 0 है, तो अब चाहो तो वैसे भी कर लो, 2/3 ऑफ P1 क्यूब माइनस P2 क्यूब अपॉन P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर। इसमें इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ P2 एज 0, दिस विल बी 2/3 ऑफ P1। तो वही मैंने किया है। ठीक है? तो पहले आप पी एवरेज निकाल लो। तो व्हाट इज पी एवरेज? व्हाट्स द वैल्यू ऑफ पी एवरेज चंद्रहास? 3 7 21 7 19 14 1400 आएगा। Yes, anybody else? 1333। okay, you have taken I think 2000 है ना, तो 4000 अपॉन 3। हाँ ठीक है, तो 1333 आपके पास आया पी एवरेज। तो बिकॉज यू नो द पी एवरेज, और आपके पास सपोज पीपीसी ले लो, वही पीपीसी यूज कर लो 663 psi। मैं इसलिए वैल्यूज में नहीं दिया हूं, दैट यू कैन आल्सो एज्यूम दिस वैल्यूज। तो पीपीसी का वैल्यू आप एज्यूम कर लो, 663 ले लो, और टीपीसी भी यूज कर लो, 387 ले लो, 346 ले लो, जो आपको लेना है वो यूज कर, मैं इसमें लिख देना है बस। ठीक है? तो अब इससे आप पी एवरेज आर निकाल लो, और टी एवरेज आर निकाल के स्टैंडिंग कार्ड चार्ट यूज करो जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, और उससे जेड एवरेज निकालो। तो प्लीज टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड एवरेज यू हैव डिटरमाइंड, क्योंकि इस फॉर्मूले में बाकी सब तो निकल गया है। आई नीड ओनली द वैल्यू ऑफ जेड एवरेज। तो जेड एवरेज मुझे चाहिए। तो determine this value and let me know what is the value you have determined from the standing card chart। तो ये स्लाइड्स ऑलरेडी मैंने दिए हुए हैं जिसमें आपके पास स्टैंडिंग कार्ड चार्ट होगा, तो उसमें जाके जेड एवरेज निकाल के देखो कितना आ रहा है। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपको वेमाउथ इक्वेशन, क्लिंडेनसिट दोनों का एक्सपोजर मिलेगा, दोनों को कैसे हम यूज करना है व्हाइल डिटरमाइनिंग दी प्रॉपर्टीज, तो वो दोनों हम यहाँ पे देखेंगे। इसलिए कहीं पे भी कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, आई कैन अगेन रिपीट।
to solve this further, तो हमारे पास पी एवरेज आया है 133, ठीक है 133, इसको 663 से डिवाइड करो और पी आर निकाल लो। सिमिलरली 100 प्लस 460 और इसे 387 से डिवाइड कर दो। कुछ भी आप लो बट एज्यूम करके लो और इसे टी आर निकाल लो। इन दोनों को यूज करो और जेड एवरेज निकाल के दिखाओ, जेड निकालो स्टैंडिंग कार्ड चार्ट से, और दिस वैल्यू विल बी देन यूज्ड टू डिटरमाइन क्यूएससी। कितना आ रहा है जेड एवरेज? एनीवन एल्स इसने डिटरमाइन किया हो? पी आर आ रहा है 2.01 और टी आर आ रहा है 1.447, तो जेड एवरेज आ रहा है 0.8। ठीक है, इफ यू हैव यूज दीज वैल्यूज, तो जेड एवरेज आ रहा है हमारा 0.8। ठीक है, तो चंद्रास इसमें यूज करो इनको और डिटरमाइन क्यूएससी। ये डायरेक्टली एमएससीएफ डी में आएगा, ठीक है, याद रखना, दिस विल कम डायरेक्टली इन एमएससीएफ डी। और जो बाकी एमएससीएफ डी में लाना है और बाकी जो है उनकी रेलेवेंट यूनिट यूज करना है आपको। ठीक है, यहाँ टीएससी जो होगा वो 60 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, बट उसमें 460 जोड़ देना क्योंकि रैंकाइन में चाहिए, और ये 14.7 है। ठीक है, P1 आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो, 2100 या 2000 जो भी आपने यूज किया है। P2 आप जानते हो। D जो है इंटरनल डायमीटर होगा, तो वो 10.0 दिया हुआ है। अब आप देख रहे हैं ना डाया जो है वो फिट में है क्या इंच में है, तो मैं आपको यूनिट भी दिखा देता हूँ। जो रेलेवेंट यूनिट हमने यूज किए थे वो है ये रेलेवेंट यूनिट्स, तो उसके अकॉर्डिंग ये सब होना चाहिए इफ यू वांट टू डिटरमाइन क्यूएससी फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो उसमें बाकी वेरिएबल्स का सबका यूनिट ये होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास क्यू आ जाएगा डायरेक्टली इन एमएससीएफ पर डे। तो पीएससी हो गया, ये रनकाइन में चाहिए, डायमीटर फिट में चाहिए। ठीक है, एंड लेंथ किसमें, हाँ लेंथ भी फिट में चाहिए, और बाकी तो सब ठीक है। तो इससे देखो कितना आ रहा है वैल्यू क्यू का। Anybody else with the values of these variables like PR, TR किसी और ने निकाला हो तो I can help you to match these values. So the values actually determined by Chandrahas are okay. So you can compare your answers with these values. Now we are determining value of QSC using Weymouth equation. थोड़े लेंथी न्यूमेरिकल हैं बट दे आर वेरी वेरी फंडामेंटल। तो यूज योर फंडामेंटल्स एंड ट्राई टू डिटरमाइन। और ध्यान रखना जो भी आप इक्वेशन यूज करो उसके यूनिट्स रेलेवेंट रखना, क्योंकि
why I am saying this? Because I am asking answer maximum throughput for this yes. So I am asking answer of QSC और QSC हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में ही होगा. तो you can determine this answer in SCF, in SCFD also और MSCFD. तो इन MSCFD के लिए इक्वेशन ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास. बट इफ यू वांट टू डिटरमाइन दिन इन SCF, दैट इज आल्सो करेक्ट, दैट इज आल्सो करेक्ट. आप देख लो जिसमें भी आपको आंसर बताना है. मेरे पास आंसर है MSCFD में. Determine the value of QSC. Arunima has determined 2.79 MSCFD. Anshi has determined 177. Anshi, can you let me know the unit of this value? What's the unit? Arunima has determined 2.79 MSCFD. Arunima, ये गलत है आंसर. आपको आंसर चेक करना पड़ेगा. And what's the unit? Anshi, in your answer, 177 what? SCF, MSCF. So I am having two different answers right now, and I'm waiting answer from Chandrahas and from other students, so that we can compare and I can then tell you what is the correct answer. Please check your calculations, Arunima. Your answer is very away from the expected answer. Yes, previous slide. Okay, this is the previous slide. So these are the units. Okay, we have again received one answer, 169 MSCF per day. हाँ, ये आंसर फिर भी चंद्रास ठीक है. आपने यदि रेलेवेंट यूनिट यूज करे हैं तो ठीक है, क्योंकि माय आंसर इज 132 और 132 MSCF पर डे. बट हो सकता है क्योंकि मैंने ये जो वैल्यू निकाला है ना, ये MSCF पर डे, दिस वाज द वैल्यू बेस्ड ऑन दी जेड एवरेज इज इक्वल टू 0.78, जो मैंने मतलब यूज किया है. तो एनीथिंग एनीवे तुमने 0.8 यूज किया है, एंड देन यस मेरा आंसर आ रहा है 132. बट फिर भी ठीक है, 169 हो सकता है कि आपने 0.8 लिया है और आंशी का आ रहा है 177. बट हाँ, आपकी यूनिट ठीक है, यूनिट एकदम ठीक है. बट अरुणिमा ने तो बहुत ही कम कर दिया है, 2 MSCF पर डे. द आंसर इज अराउंड 130, 137, 132 के आसपास आंसर आ रहा है. Anyway, please check your calculations again. But this is the method. This is the method to determine the value of QSC directly in MSCF per day by using this equation. तो आप डायरेक्टली चाहो तो इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, अदरवाइज आप अपने हिसाब से इक्वेशन ड्राइव करो और अपना कन्वर्जन यूज करो
देन यू कैन आल्सो यूज, तो मैंने इसको यूज किया है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली क्यूएससी निकाला है, एंड टुमारो वी विल डिटरमाइन द सेम वैल्यू, सेम क्यूएससी यूजिंग क्लिंटन सेट, एंड देखेंगे जो आपके आंसर्स आए ना भी, प्लीज कीप दीज आंसर्स ऑन होल्ड। तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो 169 आ रहा है या 177 आ रहा है, क्लिंटन सेट में वो कितना आता है। तो क्लिंटन सेट में यदि वो सेम आ गया, तो इट मीन्स जेड एक्चुअली डजंट प्ले रोल इन डिफाइनिंग द प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल गैस। यदि ऐसा है तो दोनों से ही जेड सेम आना चाहिए, बट एज वी अंडरस्टैंड कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज द significant can bring significant change in the properties of natural gas, तो वो चेंजेस यहाँ पे आपको कल क्यूएससी निकालने में भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो टेबल को यूज करना है बाय क्लिंटन इक्वेशन से, वो मैं आपको कल समझाऊंगा, एंड दैट इज रियल एनालिसिस ऑफ द नेचुरल गैस, ठीक है। और वो फिर मैं टेबल से उसको सॉल्व करेंगे और देखते हैं दोनों आंसर में कितना डिफरेंस आता है, ठीक है। बट दिस इज द मेथड विच आई वांटेड टू टेल यू टू डिटरमाइन द क्यूएससी, एंड बुक्स में ये सब गलत दिए हैं, तो आप अपनी नॉलेज से और फंडामेंटल से सॉल्व करो, एंड जो जो वैल्यू दिए हुए हैं वो सब निकाल लो, जो नहीं मिला है उसको डिटरमाइन करने की कोशिश करो, ठीक है। हाँ, वन मोर थिंग, आपने जो ये 169 निकाला है ना, एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि जो मैंने निकाला है ना चंद्रा, दैट वैल्यू इज एक्चुअली दी 132, एंड दैट वैल्यू इज बेस्ड ऑन दी P1 इज इक्वल टू 2000, नहीं सॉरी 2100, और आपके में है शायद P1 इज इक्वल टू 2000, तो उससे थोड़ा डिफरेंस और आएगा। तो इसलिए ये दो चार चीजें जहां पे चेंजेस हो रहे हैं ना, लाइक जेड एवरेज अलग आ गया होगा, मेरा P1 अलग है, आपका P1 अलग है, तो उससे थोड़ा वैल्यू आपका बदलेगा, बट फिर भी 169 थोड़ा ज्यादा ही बदल रहा है, तो यू कैन अगेन रीचेक योर आंसर्स। और मैं तो सजेस्ट करूंगा आप सबको, आप दोनों से करके देखो, कंसीडर P1 2100, कंसीडर P1 2000 आल्सो, और फिर से करके देखो एक बार और देखना कैसे आएगा। और जो क्लिंडेंसेट मेथड है, वी विल सॉल्व द सेम न्यूमेरिकल बाय दिस, by using Clindeset equation tomorrow, and we'll see the difference then, ठीक है। anything else if you have not understood so far, I can again discuss or I can repeat, otherwise we will meet tomorrow. Okay, no doubt, nothing, ठीक है। then bye everyone, we will meet tomorrow then.